Now, in the same sequence of lectures, this is a subtopic of maxima and minimum, that increasing and decreasing functions. So corollary the author has given to you. Suppose that f is a continuous function on the closed interval AB. Like if you use the square bracket, this is closed interval. And if you use the parenthesis, this is the open interval. So in this closed interval, the function is differentiable. Okay, it's continuous in the closed interval and differentiable in the open interval. If f dash x is greater than 0 at each point x belonging to AB, then f is increasing on AB. याद रखिएगा. If the derivative is positive, then we say in this open interval, we say that the function is increasing function. And if the derivative is less than 0 at each point in this open interval, then the function is decreasing in the closed interval. ये corollary है, याद रखिएगा. आपसे पूछेगा in the questions के वो जी find the intervals in which the function is increasing or decreasing. So increasing की पहचान याद रखिएगा. The derivative sign should be positive, then the function is increasing, and if the derivative sign is negative, the function will be decreasing. First derivative, I'm still talking first derivative. Second derivative अभी हमने शुरू नहीं किया. First derivative test for the local extreme. This is important. Note it down and try to understand it well. Suppose that C is a critical point at a continuous function f, and that f is differentiable at every point in some interval containing C, except possibly at C itself. एक open interval ले लेंगे, उसमें C पर हम देखेंगे the function is continuous, लेकिन जरूरी नहीं वो exactly at C पे भी continuous हो, वो undefined भी हो सकता है. Okay. Moving across this interval from left to right, अब आपने क्या देखते हैं? Number 1, if f dash changes from negative to positive at C, then f has a local minimum at C. देखिएगा, f dash के हम sign behavior check करेंगे कि अगर before it is negative and positive afterwards that point, जैसे अभी मैंने एक सवाल किया था ना, 1.9 निकाला था before और एक लिया था 2.1 after. तो आपने देखा था बिफोर पे वो नेगेटिव आ रहा था, यानी डाउनवर्ड जा रहा था, और आफ्टर पे अपवर्ड जा रहा था, पॉजिटिव था. तो हमने कहा था कि ये मिनिमम पॉइंट. नेक्स्ट, इफ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट सी, देन एफ इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू. देखिए नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. इंपॉर्टेंट चीज क्या, पॉजिटिव. पॉजिटिव क्या होता है, फंक्शन ऊपर जा रहा है, उसके बाद नेगेटिव हो रहा है तो नीचे आ रहा है. आप खुद देख लीजिए ग्राफ क्या होगा. पॉजिटिव को मतलब ऊपर जाता हुआ ग्राफ जब नीचे आएगा तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि उस पॉइंट के बाद वो नीचे आना शुरू हो गया. जैसे आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव जा रहा है, जब टॉप पे पहुंच गए फिर और आगे जाएंगे तो आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे. दैट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. थर्ड, if f dash does not change the sign at C, then f has no local extremum at C. Extremum ये प्लूरल है एक्सट्रीमा की, एक्सट्रीमा कह लें. एक्सट्रीमम यानी neither a maximum value occurs nor a minimum value occurs. तो changing of sign is a must maximum minima के लिए, and if there is no change in the sign, फिर हम अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकते. हम आगे बताएंगे आपको फिर वहां पे हमने क्या क्राइटेरियन यूज करना होगा. तो ये दो क्राइटेरियन है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के. क्या, if f dash changes sign from negative to positive, then it is local minimum, and if dash changes from positive to negative, then it is a local maximum. क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये एग्जांपल आपके सामने देखिए. Find the critical points of this function fx equal to x bar 1 by 3 into x minus 4. Identify the open intervals on which f is increasing and decreasing. Find the functions local and absolute extreme values. बड़ा अच्छा सवाल है. आपको अगली दफा क्विज में दे दें तो आपको कर लेना चाहिए. हर दफा बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैंने क्विज कब लेना है. तो आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए.
Now, gentlemen, this is the critical function given to you. First, we have to find all the critical points. पहले critical point निकालिए, फिर हम देखेंगे बाकी बातें बाद में. तो given function may be rewritten as fx equal to, मैं इसको multiply कर रहा हूँ, ठीक है? x की पावर अंदर 1 है और 1/3 से जब multiply होगा, the bases are same, powers will be added, that will become 3 1 the 3 plus 1 4/3 minus x power 1/3 as it is. Okay? यहाँ पे x कोई नहीं है, तो 4 into x power 1. So this function after opening the bracket is rewritten like this. Then we differentiate. The first derivative is f dash x. लीजिए इसकी पावर इधर आ जाएगी 4/3 x पावर -1 करेंगे 4/3 -1 is 1/3 माइनस इसकी पावर भी साइड पर ले, ये 4 ऑलरेडी था और 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 into 1/3 will also become 4/3 और x पावर 1/3 -1 करें तो 1/3 -1 क्या हो जाएगा, ये -3 और ये +1 तो -2/3. You must know how to subtract 1 from 1/3. 1/3 -1 करके प्रैक्टिस कीजिए आप लोग से ये भी नहीं होता. आंसर विल बिकम -2/3. अब कॉमन निकाल लें, 4/3 इज कॉमन और x की छोटी पावर कॉमन होगी, छोटी पावर जो है वो -2/3 है, ये कॉमन ले लें. फ्रॉम हियर यू विल बी लेफ्ट विद 1 and from x and from here it will be 1 क्योंकि हमने पूरी टर्म बाहर निकाल दी है. This whole term has been taken outside. So 1 is left from here और 1/3 -2/3 तो ये +2/3 हो जाएगा तो 3/3 will become 1. यानी इस टर्म को इससे आप डिवाइड कीजिए, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे होगा, इसको ऊपर लाएंगे तो ये +2/3 ऊपर हो जाएगा आकर, तो 1/3 + 2/3 will become 3/3. आंसर will become 1 x की पावर 1. अब ये पावर माइनस में इसको नीचे ले जाए, मेक इट पॉजिटिव, तो 3 ऑलरेडी नीचे है और इसकी पावर हो जाएगी नीचे जाके 2/3. 4 is there in the numerator. So f dash x will be written like this. अब आपने तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं. I told you that the critical points occur where f dash x is 0 or is undefined. ये दोनों अपने क्राइटेरिया जानना रखते हैं. तो f dash x is 0 at x equal to 1. देखिए x dash को 0 रखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x का x की वैल्यू क्या निकलेगी 1. Okay, and is defined as such, and the moment you put x as 0, this will jump to infinity. F dash x is undefined at x equal to 0. So these are the two critical points. कौन कौन से? x equal to 1, f dash x को 0 रखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 4 डिवाइड हो जाएगा तो x minus 1 is 0, x will be 1. So the two critical points x equal to 1 and x equal to 0 you are getting. These are, there are no endpoints in the domain, so these are the critical points. ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या कहा था, identify the open intervals on which f is increasing and decreasing. So ये जिराफ critical points partition the x-axis into open intervals on which f dash is either positive or negative. अब देखिए ये कहलाता है साइन पैटर्न ऑफ f dash. आपके पास दो पॉइंट आए हैं, एक 0 आया है और एक क्या आया है 1. एक 0 आया है और एक 1 आया है, दो पॉइंट्स हैं. लेफ्ट पे छोटा पॉइंट रखते हैं आप, देखिए साइन पैटर्न ऑफ एफ डैश. इंटरवल बनाने पहले इंटरवल देखिए 0 से पहले उससे पीछे वाला इंटरवल लें, फिर 0 और 1 के दरमियान लें और फिर x ग्रेटर देन 1 तक. तो ये x एक्सिस को हमने 0 1 ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, x लेस देन 0, x lying between 0 and 1 and x greater than 1. ठीक है, अब हम इसमें बिहेवियर देखेंगे साइन ऑफ एफ डैश का. चलिए एफ डैश को सामने रखिए और जेन में ये रखें, हमने 0 से एक छोटी वैल्यू लेनी, यानी आप -1 ले लो. 0 से छोटी क्या है -1. चलिए एफ डैश में रखें यहाँ पे, यहाँ जब आप -1 रखेंगे तो ये भी -1, ये भी -1 और ये भी -1.
साइन ऑफ एफ डैश जी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। साइन ऑफ एफ डैश विल बी माइनस। अब 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान आप रख लें, फर्स्ट कर लें हम 0.5 रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 0.5 रखें तो ये नेगेटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। और x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा ले लें, 2 रख लें तो 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये साइन ऑफ एफ डैश माइनस माइनस प्लस। तो जब माइनस होता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, बताया था ना। एफ डैश पे अगर x इज लेस देन 0 पे नेगेटिव आ रहा है आंसर एफ डैश का, तो वो माइनस, ये डिक्रीजिंग हो गया। इस इंटरवल में भी डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ये मोटे मोटे लगा रखे हैं ना, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बिफोर 0 इज डिक्रीजिंग, इन द इंटरवल 0 1 ये फिर डिक्रीजिंग है, लेकिन 1 और ऑनवर्ड्स, 1 एंड ऑनवर्ड्स ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग। एज पर कोलोरी 3, एफ डिक्रीजेस ऑन माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है 0 से 1 के दरमियान भी, बट इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी तक, अब आगे प्लस में जा रहा है इन्फिनिटी, एंड इंक्रीजेस ऑन द इंटरवल 1 to 2। ये उसने कहा था अब इंटरवल्स हमें बताइए कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देख रहे हैं ना, माइनस माइनस साइन आता, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी 0, फ्रॉम 0 to 1 इसमें भी डिक्रीज कर रहा है, बट फ्रॉम 1 एंड ऑनवर्ड्स, तो 1 और 2 इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। f does not have an extreme value at x equal to 0, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा ना, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, तो जब दोनों सेम साइन होंगे तो देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यूज हियर, neither maximum nor minimum। f dash does not change the sign। f has a local minimum at x equal to 1। मिनिमम क्या होता है? डिक्रीज, यानी पहले नीचे आ रहा था और फिर बाद में इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है। एट x equal to 1 first decreasing and then increasing, तो हम कहेंगे at x equal to 1 is a minimum point, ठीक है। f has a local minimum at x equal to 1 because f dash changes from negative to positive। f minimum यानी y minimum भी निकालेंगे, कैसे? वो जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई ना आपको, क्या थी ओरिजिनल? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इस पे x को 1 रख ले, तो 1, यहाँ भी 1, तो ये 1 रह जाएगा, ये -3 बन जाएगा, तो -3 into 1 रीडिंग -3। तो ये इसका काउंटर पार्ट, मैंने कहा ना काउंटर पार्ट ढूंढना है आपने, ये क्या निकला आपका? -3। इसको कहते हैं एफ मिनिमम या वाई मिनिमम। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की आई -3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम, also an absolute minimum since f is decreasing on minus infinity to 1। इससे पहले पहले तो डिक्रीज कर रहा था सारा, और एंड इंक्रीजिंग ऑन 1 इन्फिनिटी, और इसके बाद सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है। तो बस ये सबसे एक ही पॉइंट है जो सबसे नीचे आ रहा है, तो इसको हम एब्सोल्यूट मिनिमा भी कहेंगे। देखिए रफली इसकी फिगर बना दी। इससे पहले फंक्शन क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था, और इस पॉइंट के बाद क्या कर रहा है? मुस्तकिल इंक्रीज कर रहा है। अब कोई इससे नीचे पॉइंट आपको नहीं मिलेगा इस पूरे ग्राफ के अंदर, तो इसको आप एब्सोल्यूट मिनिमा भी कह सकते हैं, ठीक है। लोकल पहले मिनिमम कहें और फिर इसको हम बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम भी है। That was an example. Now, gentlemen, let me do a question from your exercise 4.3, page is 242। आप सबके माइक खोल दो।
तो शैतान एलिमेंट निकला या नहीं निकला? ओके, आई एम ओपनिंग योर माइक्स ताकि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकें। चलिए ये आपको अलाउ कर दिया मैंने। आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आवाज आ रही है। चले, अब आपकी भी आवाज मुझे आ रही है। सो एनी क्वेश्चन टिल दिस स्टेज? अब देखिए, इसमें आपने साइन पैटर्न आपने ढूंढना है एफ डैश एक्स का। शुड आई डू ए क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज? बोलो। ख्याल फॉर्म शो हो गई है ना? कुछ समझते हैं, ये हम लेक्चर नोट कर पढ़ लेंगे। नॉट गुड। Okay, gentlemen, this is question number 3 I'm taking from your exercise 4.3. The author is asking you to find these values. Answer the following questions about the function whose derivatives are given in the exercise from 1 to 14. Number A, what are the critical points of the function? The important thing is that in every maximum minimum problem, you have to find all the critical points. Then on what open intervals is f increasing or decreasing? So you have to find the open intervals where either the function is increasing or decreasing. See, at what points, if any, does f assume local maxima, maximum and local minimum values? Okay. So you will be using here the first derivative method. Remember, this is what you are studying, is the first derivative method to find the extreme values. Your question number 3, the author is helping you in one way, that instead of giving you the function, he is giving you its derivative. तो आपको डेरिवेटिव पहले ही निकाल के उसको दे दिया। थोड़ा सा सेंस यूज किया करें। Do not differentiate again because the derivative is already given to you. Note it down. अब आपको सिंपली सेट करना है f dash x equal to 0 to find the critical points. ये आपके पास f dash x है 0 का. This is a product of two factors. Either first factor is 0 or the second factor is 0. X minus 1 का whole square is 0 means x minus 1 is 0 means x is 1. एक point. And second x plus 2 is 0 means x is minus 2. So x equal to minus 2 and 1 are the critical points. Now, no endpoints in this domain. आपके पास पॉलिनोमियल होते हैं ना, तो एंड पॉइंट्स नहीं है आपके पास, इंटरवल नहीं ना दिया हुआ, तो देयर इज नो एंड. ओके, नाउ साइन पैटर्न ऑफ एफ डैश. देखिए, ड्रॉ लाइन, इंटरवल बना ले. पहले लेफ्ट साइड पे हमेशा छोटा पॉइंट रखा करें, तो लेस देन दिस पॉइंट -2 से लेस ले ले, x इज लेस देन दिस. फिर x ले इन दिस इंटरवल -2 to 1. ये देख रहे हैं आप, -2 से 1. मैं इक्वल टू नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसने कहा था ओपन इंटरवल लेना है आपने, तो -2 लेस देन x लेस देन 1. फिर x ग्रेटर देन 1 ले लें आप. यही हमने पहले पिछले भी क्वेश्चन में किया था, यहाँ भी करते हैं. सो योर x एक्सिस इज डिवाइडेड इनटू these intervals, open intervals. Okay. अब आप साइन ऑफ एफ डैश देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ यही एफ डैश है. अब इसे आप चेक कीजिए, -2 से लेस हम क्या रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, एज्यूम कर लें. देखिए मैंने लिखा है ना -3. -3 पे देखिए क्या आ रहा है, -3 और ये -1 इसको स्केयर लेंगे तो प्लस हो जाएगा. लेकिन ये -3 और +2 ये माइनस में आएगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ही आएगा. ठीक है, एफ डैश एक्स विल बी नेगेटिव. ये जो साइन है ना, ये आपने दिमाग में कैलकुलेट करके यहाँ रखना है. ऐसे नहीं आंखें बंद करके जहां दिल चाहा प्लस लिखा, जहां दिल चाहा माइनस. नो, यू हैव टू
put a point before less than -2. So I am assuming -3. Putting here -3, this will become plus and this will become minus. Plus into minus will be minus. And now I'm choosing a point between this interval -2 से 1 तक. चलो 0 रख सकते हैं. -2 से 1 के दरम्यान क्या आ रहा है? 0. 0 रख लो. इसको मैं 0 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा. इसको 0 रखूंगा तो ये भी प्लस और ये भी प्लस. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्लस. डन है जी. बिल्कुल समझते जाइए गौर से. तो साइन ऑफ एफ डैश विल बी प्लस. अब आइए ग्रेटर देन 1 यानी 2 रख के देखते हैं. चलिए 2 रखें. ग्रेटर देन 1 है ना, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, वो भी प्लस. और यहाँ पे 2 रखेंगे, ये भी प्लस. तो प्लस इंटू प्लस विल रिमेन प्लस. ठीक है. तो लेस देन -2 पे माइनस है और इंटरवल के अंदर प्लस है और ग्रेटर देन 1 पे भी प्लस है. तो आप क्या कहेंगे? असल में क्रिटिकल पॉइंट तो ये हमारे -2 है और 1 है. जहाँ पे मैंने ये दायरा लगाया ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. अच्छा, बाकी पॉइंट्स तो वैसे ही हम चुन रहे हैं ना, अज्यूम कर रहे हैं जी. तो माइनस आ रहा है एफ डैश तो डिक्रीजिंग, प्लस आ रहा है तो इंक्रीजिंग, फिर प्लस आ रहा है तो फिर इंक्रीजिंग. तो जहाँ साइन चेंज होता है वहां पे एक्सट्रीम वैल्यू आती है जी. डिक्रीजिंग का मतलब फंक्शन नीचे आ रहा था और बाद में ऊपर जा रहा है, तो मिनिमम हो गया ना. ठीक है. लोकल मिनिमम एग्जिस्ट एट x इक्वल टू -2. है ना हमारा x इक्वल टू -2. लिखिए. एज पर क्लोरली 3 f डिक्रीजेस ऑन द इंटरवल -इंफिनिटी से -2 और फिर डिक्रीज नहीं, फिर इंक्रीज कर रहा है. And increases on the interval -2 1 and again increases on the interval 1 के बाद आगे जो है ना इंफिनिटी का लाएगा वो. ठीक है. and again increases on the interval 1 1. So f does not change. यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है x equal to 1 पे, because sign is similar so there is no change. तो आप क्या कहेंगे? f function has no extreme value at x equal to 1 because f dash does not change the sign. अब कहाँ पे साइन चेंज हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है -2 पे. तो आप कहेंगे f has a local minimum at x equal to -2 as f dash changes from negative to positive. ये नेगेटिव है ना, डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव इंक्रीजिंग. तो नेगेटिव नीचे आ रहे हैं और इंक्रीज कर रहा है ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पे ये कहलाएगा फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2. नो लोकल मैक्सिमम. मैक्सिमम तो आया ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे साइन ही नहीं चेंज हो रहा. इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी? पूछो, अगर समझ नहीं आया तो पूछो. हाँ सर यार, एंड पॉइंट का बता दें. एंड पॉइंट का बता दें क्या चीज क्या कह रहे हो? सर. एंड पॉइंट का बता दें. नो एंड एंड पॉइंट्स है ना अभी जी. कौन सा एंड पॉइंट? सर ऊपर. पूछो कौन सा एंड पॉइंट? सर ये नो एंड पॉइंट्स इन द डोमेन, इसका बता देंगे दफा. इसमें आपको कोई इंटरवल दिया हुआ है? नहीं है ना सर इंटरवल. इंटरवल नीचे निकाल लिया तो तब भी एंड पॉइंट नहीं निकाल सकते हम. इसका जो है ना -इंफिनिटी से फंक्शन शुरू होता है, +इंफिनिटी तक जा रहा है. एंड पॉइंट वो होता है जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये फंक्शन है इन द इंटरवल -1 से 2. ये एंड पॉइंट होंगे ना इंटरवल के. इंटरवल हैज नॉट बीन गिवन टू यू. सर लेकिन हमने निकालनी है ना नीचे -2. वो तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं. ये जो आपने निकाला ना -2 और 1, ये क्या है? ये क्या चीज है? जब भी क्रिटिकल हम पॉइंट. ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. फिर इससे इंटरवल बनाए -2 से, अब एक छोटा पॉइंट लेस देन ले लें -2, फिर -2 से 1 के दरमियान ले लें और फिर 1 से ग्रेटर ले लें. ये तो आपने खुद बनाने होंगे ना इंटरवल. ये इंटरवल्स हैं. ठीक समझ है में सर. आया? आया समझ में? ठीक. देखो, ठीक है सर. सबसे छोटे पॉइंट से पहले आगे पीछे चले जाओ और सबसे बड़े वाले पॉइंट से आगे चले जाओ और फिर इन दोनों के दरमियान
एक्स क्या है, लाइंग बिटवीन -2 से 1। तो पिछले एग्जांपल में भी हमने यही किया था। ठीक हो गया? ठीक है सर। क्वेश्चन 5 भी कर लीजिए, बहुत आसान है। एफ डैश तो ये दिए हुआ है, आप इसको जीरो रखें। जब जीरो रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होता, याद रखना। डू नॉट सेट ई पावर एक्स इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। x-1 जीरो हो सकता है, x-1 जीरो का मतलब x1 हो जाएगा। ई पावर एक्स विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, लिख दिया मैंने। अब एक ही पॉइंट आया आपके पास, अब इसका साइन पैटर्न, नो एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो साइन पैटर्न ऑफ एफ डैश, या तो x हम 1 से पीछे ले लेंगे और या फिर ग्रेटर ले लेंगे, और इंटरवल तो है ही नहीं ना, 2 पॉइंट्स अब आए नहीं हमारे पास, एक ही पॉइंट है, या उससे पीछे देखेंगे या उसके आगे देखेंगे, राइट। तो ये आपका x इक्वल टू 1 है, ओनली 1 पॉइंट। अब या बिफोर देखेंगे या आफ्टर देखेंगे। बिफोर का मतलब है 1 से छोटा पॉइंट -1 रख के देखो, यहाँ -1 रखोगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, चाहे वो पावर नेगेटिव में रखो चाहे पॉजिटिव में रखो, ई पावर एक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना, ये नेगेटिव नहीं आएगा। अब तुमने यहाँ रखा -1 तो ये -2 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस, ठीक है, साइन ऑफ एफ डैश। और जब हम प्लस रखेंगे, प्लस का मतलब चलो 2 रख के देख लो, तो 2 - 1 ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस रहना ही रहना है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इस इंटरवल में माइनस और इस इंटरवल में प्लस। माइनस होता है एफ डैश तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग है फंक्शन, प्लस होता है तो जैसे इंक्रीजिंग है। यस, अब साइन चेंज हो गया ना, इससे पहले डिक्रीज कर रहा था नीचे आ रहा था, और इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज कर ऊपर जा रहा है। ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लोकल मिनिमम, ठीक है। पहले तो लिख दो एफ डिक्रीजेस ऑन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से हम चलते हुए 1 पे आ रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और 1 से प्लस इंफिनिटी पे जाएंगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, एंड इंक्रीज ऑन दिस इंटरवल। एफ हैज अ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि पहले फंक्शन डिक्रीज हो और बाद में इंक्रीज हो, तो ऐसे हम कहते हैं लोकल मिनिमम। और चूंकि एक ही पॉइंट है, ज्यादा इसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम भी कह सकते हैं, ऑल्सो दी एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। अब या तो फंक्शन हमेशा लेफ्ट साइड पे नीचे आ रहा होगा और राइट साइड पे ऊपर जा रहा होगा। क्वेश्चन 11 भी देख लो, अभी आपके लिए मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए दे दिए क्वेश्चन, पेपर में आए तो कर लेना भाई। अच्छा, ये डैश एक्स ऑलरेडी दिया हुआ, इसको आप ऐसे लिखो, इसको नीचे ले आओ पावर, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या हम कहते हैं, एफ डैश एक्स को 0 रखो, जब 0 रखोगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0, x + 2 विल बी इक्वल टू 0 मींस x विल बी इक्वल टू -2। एक पॉइंट ये निकला, x इक्वल टू -2। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, वेयर द एफ डैश इज अनडिफाइंड, तो मैं जब x को 0 रखूंगा तो एफ डैश x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0, ये दोनों हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स, -2 एंड 0 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक हो गया। पहले तो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, अब इंटरवल बनाइए। इंटरवल कैसे बनेगा, ये छोटा पॉइंट है, इससे लेस ले लो, x लेस देन -2, फिर इन दोनों के दरमियान ले लो -2 से 0 तक, ये एक इंटरवल आ गया, -2 से 0, x बीच में रख लो। फिर हम लेंगे x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हिस्सा, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये हम दोनों के दरमियान। चेक करो, -2 से छोटा फर्स्ट को हम -3 रख लेते हैं, -3 यहाँ रखो, तो ये -3 माइनस माइनस आ जाएगा ना, सही है। अच्छा नहीं, देखो माइनस में माइनस और नीचे जब ये भी माइनस की पावर 1/3 तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। ये भी माइनस हो जाएगा और ऊपर भी माइनस आ रहा है, तो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। अब रखो -2 से 0 के दरमियान, हम फर्स्ट को लो -1 रखते हैं, -1 रखोगे तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला माइनस हो जाएगा, तो प्लस और ये माइनस जब ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस ओवर माइनस विल बी माइनस। ग्रेटर देन 0 प्लस रखना है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो दोनों प्लस रहेंगे, प्लस हो जाएगा,
ठीक है, अब आप देख रहे हो इससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और यहाँ फंक्शन फिर इंक्रीज कर रहा है। तो असल में ये जो मैंने स्पॉट लगाया ना -2 पे, ये क्रिटिकल पॉइंट है और 0 ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब आप एज पर क्रॉली 3 आप बताएंगे इंक्रीजिंग कहाँ कर रहा है, ये देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो आप कहेंगे the function is increasing on -infinity से -2 and 0 to +infinity, इन दो जगहों पे तो ये इंक्रीज कर रहा है और इस दरमियान में क्या कर रहा है, डिक्रीज। -2 से 0 पे क्या रहा है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 to 0, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, हर जगह साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज का मतलब पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया, तो ये मैक्सिमम हो गया, लोकल मैक्सिमम अकर्स एट x इक्वल टू -2। और डिक्रीज के बाद इंक्रीज करते तो कहेंगे लोकल मिनिमम अकर्स एट x इक्वल टू 0। f has a local maximum at x equal to 2, f dash changes from positive to negative, पॉजिटिव ऊपर जाना और नेगेटिव नीचे आना, तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। And f has a local minimum at x equal to 0 as, यहाँ पे देखो ये x equal to 0 है, इससे पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, नीचे आ रहा था और बाद में इंक्रीज कर रहा है। तो नेगेटिव टू जब पॉजिटिव होता है तो ये होता है लोकल मिनिमम। In exercise 15 to 44, find in open intervals on which the function is increasing, decreasing, अभी आपको सिखाई दिया है। Identify the functions, the local and absolute extreme values, if any, saying where they occur. क्वेश्चन नंबर 19 ले रहा हूँ, gt इक्वल टू -t स्क्वायर -3t + 3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। जरूरी नहीं है x में हो, आपका कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है। इसको आप डिफरेंशिएट करना से gt दिया है, g डैश t नहीं दिया, हर जगह याद रखना, आके खोल के देखना, either the derivative is given or only the function is given। function is given तो आप उसका डैश निकाल लो, डैश निकाला, ये आ गया। सेटिंग g डैश इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, 0 रखा, इसको सॉल्व किया, t की वैल्यू आ गई -3/2, इसका मतलब है -1.5, एक ही पॉइंट आया। तो हमने उससे पहले छोटा लेस ले लेंगे और उसके बाद ग्रेटर देन ले लेंगे, तो आसान हो गया ना, एक ही पॉइंट आया। तो जी साइन पैटर्न ऑफ जी डैश, देखिए इंटरवल पहले हम बनाएंगे t लेस देन दिस पॉइंट और फिर t ग्रेटर देन दैट पॉइंट। चेक कीजिए, लेस देन दैट पॉइंट f डैश का साइन, यानी f डैश तो नहीं है, अभी g डैश है ना, हाँ g डैश, ये आपका g डैश है। तो -1.5 से छोटा पॉइंट क्या होगा, -1.6 रखते हैं, ये छोटा होगा, याद रखना। -1.6 यहाँ रखकर कैलकुलेट किया तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, और वो बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो गोया प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा प्लस। और यहाँ पे t ग्रेटर देन -5, ग्रेटर में पॉइंट क्या होगा, -1.4 जो है वो ग्रेटर, वो यहाँ रख के देखिए, ठीक है, -1.4, तो आंसर आएगा नेगेटिव में, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया जी डैश का सम। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब ऊपर पहले पॉजिटिव फिर नीचे नेगेटिव, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और ये आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो इंटरवल में हम क्या कहेंगे, हम पहले लिखेंगे g हैज एन इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -1.5, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में क्या है, -1.5 से +∞ तक डिक्रीजिंग है। तो these are the intervals where the function is increasing and decreasing। लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू -5 मैंने कहा था ना, प्लस के बाद माइनस हो तो फिर हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम। अब इसका g मैक्सिमम निकालो, ये g जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें t की वैल्यू 1.5 रख दो, -1.5, ठीक है, यहाँ पर रख दो, माइनस बाहर है, -1.5 का स्क्वायर -3, फिर t की वैल्यू फिर -1.5 और +3। सॉल्व किया मैंने, इसको स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो फिर माइनस ही रहेगा। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 है, नेक्स्ट में आंसर आ रहा है 5.25। तो आपकी ये t वैल्यू है और ये gt वैल्यू, -1.5 एंड 5.25। मैंने कहा ना काउंटर, उसका जो काउंटर पार्ट होता है वो ढूंढ लिया करें। तो सेम
point is absolute maximum as no other point, no critical point exists. और कोई point है ही नहीं critical point, एक ही point है तो बस यही absolute maximum भी कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम? ये वही एक्सरसाइज चल रही है 4.3। देखिए बहुत आसान आसान सवाल है, मैं खाली समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि अब टाइम भी खत्म होने वाला है। There are 3 minutes left. This is the last question I'm explaining you. fx is x4 minus 8x power 2 plus 16. Call this equation number 1. Differentiate with respect to x. किया differentiate. Set कर दिया f dash is equal to 0. Critical point निकालें x into x square minus 4. x square minus 4 का further a square minus b square का फार्मूला लगाइए और ये दो फैक्टर और बन जाएंगे x plus 2 x minus 2. Product of 3 factor is 0, so either the first factor is 0 or the second factor is 0 or the third factor is 0. तो आपके पास पॉसिबल आंसर्स क्या आ रहे हैं? यहाँ से -2 आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है और यहाँ से +2 आ रहा है। तो मैंने इस तरतीब से लिखा है, the smallest point first, the bigger next और the biggest and the end, ठीक है ना? अब आप इन्हें इसका साइन पैटर्न बनाना है of f'. There are 3 critical points now, gentlemen. तो x एक्सिस पे ये देखिए -2 लिखा मैंने, फिर 0 लिखा और फिर 2 रखा। ओके, आप एक्सरसाइज ड्राई कर लें और ये अब हमने एक साइन पैटर्न बनाना है, तो इससे लेस लेंगे, फिर ये इंटरवल लेंगे -2 से 0, फिर दूसरा इंटरवल लेंगे 0 से 2, ठीक है ना, देख रहे हैं आप, और फिर 2 से ग्रेटर लेंगे। दिस इज द वे वी मेक द इंटरवल्स। बात समझ में आ गई? x लेस देन -2, फिर x लाइंग बिटवीन -2 to 0, फिर x लाइंग बिटवीन 0 to 2, ये हो गया, एंड देन x ग्रेटर देन 2, ये ठीक है ना, x ग्रेटर देन। अब चेक कीजिए, -2 से लेस किसमें देखना हमने? f डैश के अंदर, हमारा f डैश ही आ गया इक्वेशन 2 में। लेस देन -2 का मतलब -3 रख के देखते हैं। चलिए यहाँ पे -3 रखते हैं, क्यूब है तो ये माइनस में आ जाएगा। -3 अगर मैं रख रहा हूँ तो -9 -8 ये माइनस में आ गया और ये प्लस हो गया। प्लस वैल्यू छोटी है, माइनस वैल्यू बड़ी है, तो नेट शेल में आपका आंसर आ रहा है माइनस में। तो f डैश x इज नेगेटिव। ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा अच्छा क्या आंसर आ रहा है। अब -2 से 0 तक, -2 से 0 तक मैं कौन सा वैल्यू रख रहा हूँ? -1। ये देखो नीचे रखा है, चले -1 रखिए इसमें f डैश पे। यहाँ पे -1 रखूंगा तो ये -4 हो जाएगा और ये -1 रखूंगा तो ये +16 हो जाएगा, तो आंसर आएगा +1, ठीक है। तो ये साइन पैटर्न ऑफ f डैश विल बी प्लस। अब 0 से 2 के अंदर 1 रख लें। मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 4 और यहाँ रखूँ तो -16, अगेन माइनस आ जाएगा, ये माइनस लिखता है, ठीक है। और 2 से बड़ा 3 रख लें तो 3 3 9 3 27 into 4, ये बड़ा हो गया और ये छोटी वैल्यू आएगी तो प्लस में आ जाएगा आंसर, ये प्लस होगा। आप नोट कर रहे हैं, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। वाह बड़ा अच्छा साइन पैटर्न बन गया। तो आप पहले बताइए, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है, the function is increasing on the interval -2 to 0 and 2 to infinity। ये 2 to infinity है ना, हाँ, इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग वेयर, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इज -∞ से 2, ये -∞ से 2 चल रहा है, ठीक है, इसमें डिक्रीज कर रहा है, एंड इन द इंटरवल 0 to 2, ये इसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। अब माइनस से जब प्लस में जाता है, माइनस का मतलब नीचे आ रहा है, यहाँ प्लस, तो ये मिनिमम हो गया। लोकल मिनिमम एक ही आएगा और एक यहाँ पे लोकल मिनिमम आ रहा है, कहाँ कहाँ कहाँ, ये